السلام علیکم ناظرین، 4 ٹی وی خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں محمد حسام الدین متین۔ سب سے پہلے پیش ہیں سرخیاں۔ اگر آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپر سے رابطہ کریں۔ کیو میکس دے رہا ہے ریڈی بینکٹ ہال، 3 فلورز پر مشتمل، 5th 6th 7th فلور پر 6,000 کا 18,000 اسکوائر فٹ کا ریڈی میڈ بینکٹ ہال۔ آج ہی رجسٹری کرائیں اور آج سے ہی فنکشنز کی بکنگ کریں، وہ بھی بہترین پرائم لوکیشن ٹولی چوکی پر۔ منگنی، شادی، ولیمہ، برتھ ڈے پارٹیز، اینیورسری جیسی دیگر تقریبات کے لیے فلی ایئر کنڈیشن کیو میکس کوہینور بینکٹ ہال، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آپ کے لیے لائے ہیں 3 and 4 BHK لگژری ریزیڈینشیل فلیٹس پرائم لوکیشن پر ماڈرن ایمینٹیز کے ساتھ۔ پلیٹینا ریزیڈینشیل کمرشل، ڈالر ہلز الکاپور روڈ، موسا انکلیو، ایس اے کالونی ٹولی چوکی، MSN ڈائمنڈ ہلز کالونی ٹولی چوکی، ایزل ریزیڈینسی ایس اے کالونی ٹولی چوکی، سرین ہائٹس گولڈن سینڈ کالونی ٹولی چوکی، دارالامر ہیپی ہومز کالونی الکاپور، دارالخیر سوریہ نگر کالونی ٹولی چوکی، ڈیلائٹ سوٹ beside سنا انکلیو ٹولی چوکی، اکبر انکلیو گولڈن سینڈ کالونی ٹولی چوکی۔ انکمپرومائزڈ کوالٹی کنسٹرکشنز، آن ٹائم ڈیلیوری ہماری پہچان ہے۔ 35% ڈاؤن پیمنٹ، بقایا 12 مہینے کی آسان اقساط پہ۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ عزیز کنسٹرکشن معاون گروپ پیش کرتے ہیں 3 اور 4 BHK کے اعلیٰ رہائش فلیٹس حیدرآباد کے پرائم لوکیشنز پر واقع، جیسے معاون 1 بنجارہ ہلز روڈ نمبر 12، معاون گارڈن ٹاور سالار جنگ کالونی ٹولی چوکی، معاون ہائٹس ملے پلی، معاون زمزم لبرٹی ٹولی چوکی شیخ پیٹ مین روڈ، معاون ڈیزائر مراد نگر مہدی پٹنم، معاون فیمس ریسیڈنسی 7 ٹومز روڈ ٹولی چوکی، معاون پرل اور معاون ایونیو سوریہ نگر کالونی ٹولی چوکی، معاون مہاراجہ ریسیڈنسی فتح دروازہ، معاون آشیانہ ملے پلی، معاون کلاسک ماسب ٹینک۔ بہترین فیسلٹیز، اعلیٰ کنسٹرکشن اور مکمل تحفظ کی ضامن ہے۔ عزیز کنسٹرکشن معاون گروپ ڈیسائٹ رتندیپ سپر مارکیٹ شیخ پیٹ روڈ ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ اس مہنگائی کے دور میں سونا خریدنا ہوا آسان۔ جوہری گولڈ ڈائمنڈز اینڈ پلیٹینم ٹولی چوکی لایا ہے گولڈ بچت اسکیم۔ شادی بیاہ اور دیگر تقریبات کے لیے اب سونا خریدیں 11 مہینے کی آسان اقساط پر، اور 12ویں مہینے میں اپنا سونا گھر لے جائیں ایوریج گولڈ ریٹ پر، بنا کوئی ایکسٹرا چارج اور 0% انٹرسٹ کے ساتھ۔ 916 ہال مارک کی جیولری، نو ویسٹیج، نو میکنگ چارجز کے ساتھ۔ اب ہوگی بچت پیسوں کی اور گھر آئے گا سونا، وہ بھی آسان اقساط پر۔ آپ کا بھروسہ، ہماری پہچان، جوہری، کرافٹڈ جسٹ فار یو، گولڈ ڈائمنڈز اینڈ پلیٹینم، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ سیلف ہیلپ گروپ کی خواتین RTC بس کی مالک، بلا سودی قرض کی رقم کو 25,000 کروڑ روپے کرنے کا بھٹے وکرمارکا کا اعلان۔ سرکاری ملازمین کو 1 DA منظور، ریاستی کابینہ کے اجلاس میں دیگر اہم فیصلے۔ ٹیوٹر ٹلو کو فرار ہونے میں مدد کی گئی، بی سنجے کا الزام۔ KTR کو پھنسانے کی سازش، BRS کا الزام۔ اور KTR کے بردر نسبتی کے مکان کی ریف پارٹی پر دھاوا، راج پاکلا فرار، 35 افراد کے ڈرگز کے معائنے، تحقیقات جاری۔ اور اب پیش خبریں تفصیل سے۔ نائب وزیر اعلیٰ بھٹے وکرمارکا نے کہا کہ خواتین کی ترقی میں تلنگانہ ملک کی ایک مثالی ریاست ہوگی۔ ضلع کھمم کے کلکٹر دفتر میں مہیلا شکتی کینٹین، بس شیلٹر، لیڈیز لانچ کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر بھٹے وکرمارکا نے کہا کہ تلنگانہ کی کانگریس حکومت نے خواتین کو بلا سودی قرض دے کر ان کو خود مکتفی بنایا ہے۔ بھٹی نے کہا کہ اس سال 25,000 کروڑ روپے بلا سودی قرض دینے کا نشانہ رکھا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ 5 سالوں میں خواتین کو 1 لاکھ کروڑ روپے کا بلا سودی قرض دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ قرض کے علاوہ ان کے کاروبار کو بڑھانے میں حکومت تعاون کرے گی۔ RTC میں ڈاکرا تنظیموں کو حصہ دار بنانے پر حکومت غور کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ چند دنوں میں بس کی مالکین سیلف ہیلپ گروپ کے خواتین ہوں گی۔ بھٹی نے کہا کہ بلا سودی قرض
तकसीम के प्रोग्राम को तहरीक के तौर पर चलाने के लिए काम करें। उन्होंने कहा कि अगर ख़वातीन माली तौर पर मुस्तहकम होंगी तो उनका ख़ानदान भी मुस्तहकम होगा। सरकारी मुलाजिमीन को 5 के मिन जुमला सिर्फ 1 DA देने का हुकूमत ने फैसला किया है। हफ्ते की रात देर गए मुनक्किदा काबीना इजलास में यह फैसला किया गया है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की सदारत में करीब 6 घंटे चले इस इजलास में दीपावली के बाद हर असम्बली हलके में 3500 इंद्रमा मकानात को मंजूरी दी जाएगी। इसके अलावा नवंबर 4 तारीख से ज़ात पात की मरदमशुमारी का आगाज़ होगा। इसे 30 नवंबर तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। हुकूमत ने मेट्रो रेल के दूसरे मरहले की DPR को मंजूरी दे दी है। रियासत भर में 6000 से ज़ायद धान की खरीदी मराकज़ कायम करने का भी फैसला लिया गया। इसके अलावा दीगर और भी फैसले लिए गए। हैदराबाद के NTR स्टेडियम में सदर सम्मेलन फेस्टिवल में वज़ीर आला ने शिरकत की। इस मौके पर वज़ीर आला ने खिताब करते हुए कहा कि हैदराबाद शहर की तरक्की में यादव ब्रदरान का रोल नुमाया है। हैदराबाद शहर में सदर मेले का इनेकाद किया गया। वज़ीर आला ने कहा कि सदर मेला सरकारी तौर पर रियासती हुकूमत के ज़रिए मुनक़्क़िद किया जा रहा है। सदर फेस्टिवल हर साल सरकारी तौर पर मुनक़्क़िद किया जाएगा। सदर का मतलब है यादों का खदर। देहात में भी सदर फेस्टिवल मुनक़्क़िद करने की ज़रूरत है। कांग्रेस ने रियासत तेलंगाना में यादव ब्रदरी को सियासी तौर पर बाइख्तियार बनाने की कोशिश में अनिल कुमार यादव को राज्यसभा का रुकन नामज़द किया। कांग्रेस आने वाले दिनों में यादव ब्रदरी को मज़ीद सियासी मौक़े फराहम करेगी। यादव भाइयों ने हैदराबाद शहर में मवेशियों की परवरिश की। ये ब्रदरी मूसा कैचमेंट एरिया के किनारे मवेशियों का चारा उगाती थी। आइए हम दरियाए मूसा को जिंदा करें जो कचरे का ढेर बन गया था। यादव ब्रदरी से शहर की तरक्की में हुकूमत का साथ देने की अपील की। कुछ ताकतों की तरफ से रुकावटों के बावजूद कांग्रेस ने हैदराबाद शहर को बैनुल-अक़वामी सतह पर तरक्की देने की जिम्मेदारी ली। हम मूसा कैचमेंट एरिया में रहने वाले लोगों के मेयार ज़िंदगी को बेहतर बनाने जा रहे हैं। यादव ब्रदरी से अपील की है कि वो सदाकत के साथ खड़े हों और हमें नाइंसाफ़ी पर फतह हासिल करने दें। కన్నా పేద ఇంటికి పండుగ తెస్తాడు సోనియమ్మ దివెనతోని రాహులన్న సైనికుడయ్యి పెద్ద కొడుకై యుద్ధం చెయ్య సిద్ధమాయే రేవంతన్న మూడు రంగుల జెండా పట్టి సింగమోలే కదిలినాడు ఒక్కరో కాంగ్రెస్ సూర్యుడు మన రేవంతన్న నిగ్గదీసి అడిగే మొనగాడు OMCS సదర్కు వచ్చినప్పుడే నేను ఆ రోజు చెప్పిన రాబోయే రోజుల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేస్తుంది। ఆ ప్రజా పాలనలో సదర్ సమ్మేళనం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అధికారికంగా నిర్వహిస్తుంది। రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యాదవ సోదరులని హక్కున చేర్చుకొని గుండెల్లో పెట్టి చూసుకుంటుందని నేను ఆనాడు OMCS అక్కడ నేను చెప్పడం జరిగింది। ये शान ये सदर अपना यादवों का कदर है। हर कोने कोने पे तेलंगाना में गांव गांव में ये आवाज उठाना, ये सदर सम्मेलन हर गांव गांव में आप लोग लेकर जाना, इसके जिम्मेदारी मैं अनिल यादव को अरविंद यादव को ये जिम्मेदारी मैं दे रहा हूं। अपने समाज के लिए जो कोशिश करेगा पूरा समाज उन लोगों को सम्मान करेगा। इसीलिए आज के तारीख में मैं ये की बात कहना चाहता हूं, ये हैदराबाद शहर का शान निभाने का भाई लोग यादव लोग अपने साथ में कांग्रेस के साथ में रहा तो ये हैदराबाद के तरक्की हम लोग आगे लेकर जाएंगे। हिंदुस्तान में यादवों का हैदराबाद शहर नाम रोशन कर देंगे। BRS पार्टी के साबिक वजीर और रुकन असम्बली हरीश राव ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत रिटायर्ड मुलाजिमीन की रकम भी अदा नहीं कर रही है। सिद्दीपेट में सुबकदोश होने वाले मुलाजिमीन की तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने सुबकदोश होने वाले 6000 मुलाजिमीन को रिटायर्ड होने पर दी जाने वाली रकम जारी अब तक नहीं की है। उन्होंने कहा कि मुलाजिमीन को रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले मराहत की रकम 3 साल के बाद देने
का ऐलान करना अफसोस की बात है। उन्होंने कहा कि मुलाजिमीन के लिए 1 डीए का ऐलान करते हुए मुलाजिमीन को मायूस कर दिया है। हरीश राव ने कहा कि बीआरएस हुकूमत ने मुलाजिमीन को 15 डीए दिए थे। बीआरएस हुकूमत में मुलाजिमीन सुबकदोश होते ही दूसरे दिन रकम दी जाती थी। कांग्रेस हुकूमत में नहीं मालूम रकम कब मिलेगी। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि सुबकदोश मुलाजिमीन को दिए जाने वाली मराआत को फौरन जारी करें। बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर के तारक रामाराव ने कहा कि रेवंत रेड्डी को कांग्रेस पार्टी की हुकूमत चलाने नहीं आ रहा है। उन्होंने उप्पल असेंबली हल्के नाचारम का दौरा किया। केटीआर ने पेद्दाचेरू के एसटीपी का पार्टी कायदीन के साथ मिलकर दौरा किया। इस मौके पर केटीआर ने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना में पुलिस को पुलिस मार रही है। रेवंत रेड्डी ने रिकॉर्ड बनाया है। केटीआर ने कहा कि मूसा नदी के नाम पर कांग्रेस रकम लूटना चाहती है। केटीआर ने कहा कि बीआरएस पार्टी ने जो एसटीपी तामीर किए हैं इससे पानी की सफाई हो रही है। उन्होंने कहा कि एसटीपी पर 4000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। उन्होंने कहा कि केसीआर ने बहुत पहले मूसा नदी को जिंदा करने के कामों का आगाज कर दिया था। रेवंत रेड्डी को अब कुछ नया करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि बहबूदी प्रोग्राम के लिए हुकूमत के पास फंड्स नहीं हैं। मूसा नदी को जिंदा करने के फंड्स मौजूद हैं। मूसा नदी को खूबसूरत बनाने के नाम पर लूटा जा रहा है। ఇవాళ హైదరాబాద్ లో ఉండే పేద ప్రజలకు నేను ఇచ్చే మాట ఒకటే, బీఆర్ఎస్ పార్టీ చెప్పే మాట ఒకటే, ఖచ్చితంగా మీ కండగా కేసీఆర్ గారు మేమందరం నిలబడతాం, ఈ ప్రభుత్వాన్ని వదిలిపెట్టం, 6 గ్యారెంటీలు అమలు చేసేదాకా ఖచ్చితంగా ఎంబడబడతాం, పేద ప్రజలకు ఇచ్చిన ప్రతి మాట నిలబెట్టుకునేదాకా ఎంబడబడతాం. మనం మూసీ బ్యూటిఫికేషన్ కు వ్యతిరేకం కాదు, కానీ మూసీలో జరిగే లూటిఫికేషన్ కు ఖచ్చితంగా వ్యతిరేకంగా ఉంటాం. మూసీలో లూటి చేస్తామంటే హైదరాబాద్ వాళ్ళు మొత్తం మమ్మల్ని గెలిపించారు. ఊర్లలో కొన్ని చోట్ల ఓడిపోయినాం, కానీ హైదరాబాద్లో ఒక్క సీటు కూడా కాంగ్రెస్కి ఇవ్వకుండా మీ చైతన్యం మీరు చూపెట్టిండ్రు. అందుకే హైదరాబాద్ ప్రజలకు మేము మాటిస్తా ఉన్నాం, మీ కండగా మేముంటాం. మీ ఇంటికి బుల్డోజర్ వస్తుందంటే దానికి అడ్డం మేము పోతాం. మా లక్ష్మారెడ్డి గారు, మా కార్పొరేటర్లు మీ కండగా నిలబడతారు. మొత్తం బీఆర్ఎస్ నాయకత్వం ఉప్పల్లో మీ కండగా నిలబడుతుంది. మీరు కోర్టుకు పోయేది ఉంటే కూడా పేపర్లు తీసుకొని లక్ష్మారెడ్డి కాడికి రండి. పార్టీ తరఫున మేమే న్యాయవాదులను పెట్టి మీకోసం కొట్లాడతాం తప్ప మీరు భయపడే అక్కర్లేదు, 1 రూపాయి ఖర్చు పెట్టే అక్కర్లేదు. बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर के तारक रामाराव के ब्रदर निस्बती के फार्म हाउस पर साइबराबाद एसओटी पुलिस ने धावा करते हुए रेफ पार्टी के खिलाफ कार्रवाई की। जिनवाड़ा रिजर्व कॉलोनी में मौजूद राजपाकला के फार्म हाउस पर ड्रग पार्टी मुनक्किद की गई। पार्टी में जोरदार आवाज की वजह से एक 00 नंबर पर शिकायत मिलने पर पुलिस हरकत में आ गई और धावा किया। राजपाकला फार्म हाउस में पार्टी में शामिल अफराद का पुलिस ने ड्रग्स टेस्ट किया। एक फर्द का टेस्ट पॉजिटिव निकला है। विजय मधुरी नामी शख्स ने कोकेन का नशा किया था। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत एक मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस ने बैरूनी शराब भी जब्त की है। जब्त की गई शराब को आबकारी पुलिस के हवाले कर दिया गया है। सेक्शन 34 आबकारी एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने 21 मर्द और 14 खवातीन जुमला 35 अफराद को हिरासत में लिया। कैसनों के सामान को जब्त किया गया। ताश के पत्ते, प्लास्टिक कॉइन्स भी जब्त किए गए। इत्तला के मुताबिक राजपाकला फरार बताया गया है। मरकजी ममलकती वजीर बी संजय ने कहा कि जनवाड़ा फार्म हाउस में ट्यूटर टिल्लू के साथ उनके अफराद खानदान होने की इत्तला है। मीडिया से बात करते हुए बी संजय ने कहा कि मुल्क भर में ड्रग्स सप्लाई करने वाले भी इस पार्टी में मौजूद होने की इत्तला है। बी संजय ने कहा कि बाज पुलिस ओहदेदार ने जानबूझकर ट्यूटर टिल्लू को फरार होने में मदद की। बी संजय ने कहा कि वज़ीर आला के पास ही महकमे का दाखिला है और इसकी मुकम्मल तहकीकात क्यों नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और बीआरएस दोनों एक ही हैं। ये बात हम पहले भी कह चुके हैं। केसीआर के साथ दोस्ती की वजह से ट्यूटर टिल्लू को छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि इसकी मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। बीआरएस पार्टी के रुकन असेंबली के विवेकानंद ने कहा कि रेवंत रेड्डी केटीआर को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अवाम से जो वादे किए थे उससे अवाम के जहनों को मुंतशिर करने के लिए सियासत की जा रही है। रेवंत रेड्डी केटीआर की अवाम में मकबूलियत है, उसको बर्दाश्त कर नहीं पा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि केटीआर के ब्रदर निस्बती ने अपने मकान में अफराद खानदान के साथ पार्टी की थी। राजपाकला के मकान पर पुलिस और आबकारी पुलिस ने जाकर तलाशी ली है। किसी किस्म के वारंट के बगैर तलाशी लेते हुए अफराद खानदान को पुलिस ने परेशान किया है। जाती मकान में पार्टी करने का हक है। राजपाकला के मकान पर केटीआर और केटीआर की अहलिया नहीं थे। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी और बी संजय में मैच फिक्सिंग है। रेवंत रेड्डी एक धोखाबाज हैं। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के लीडर शोभा रानी ने कहा कि ड्रग पार्टी का असल सरगना केटीआर है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जनवाड़ा में मौजूद केटीआर के ब्रदर निस्बती के फार्म हाउस में रेव पार्टी में 14 खवातीन 21 आदमियों ने शिरकत की है। उन्होंने कहा कि इस तरह के रेव पार्टी को तरगीब देने वाली बीआरएस पार्टी है। इस पार्टी में केटीआर मौजूद थे या नहीं, मीडिया के सामने आकर जवाब दें। उन्होंने कहा कि केटीआर के खून का मुआयना किया जाए। शोभा रानी ने कहा कि ट्विटर पर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाने वाले केटीआर अब क्यों खामोश हैं। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के रुकन कौंसिल बी वेंकट ने कहा कि रियासत को ड्रग्स से पाक करने की रेवंत रेड्डी की कोशिश कर रहे हैं और मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बाज बड़े लीडर्स ड्रग्स का इस्तेमाल करने वाले पार्टी में शिरकत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रेड होने वाले इलाके में बड़े लीडर्स मौजूद थे। उन्होंने कहा कि किसी भी हालत में उनको बख्शा न जाए। इस पार्टी में शामिल होने वाले हर फर्द के तफसीलात को मंजर आम पर लाना होगा। इस पार्टी की मुकम्मल सीसीटीवी फुटेज भी मंजर आम पर लाएं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत आने के बाद ड्रग्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने कहा कि जनवाड़ा रेव पार्टी में कितनी सच्चाई है, तहकीकात करने की जरूरत है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बीआरएस पार्टी के कायदीन के मुताबिक ड्रग्स के मामले में गैर कानूनी मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस इख्तिदार में आकर 10 माह गुजर चुके हैं। रियासत में गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो गई है। मुआशी हालात अबतर हो चुके हैं। तेलंगाना अवाम के ख्वाहिशात कांग्रेस से मुमकिन कहने वाली कांग्रेस ने अवाम को मायूस कर दिया है। 10 साल की बीआरएस हुकूमत और कांग्रेस की 10 माह की हुकूमत दोनों बराबर हैं। कांग्रेस ने अवाम से किया गया एक वादा भी पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा कि मुसर्रदी को बाद में खूबसूरत बनाएं, पहले रियासत की मुआशी हालात क्या हैं इसका खुलासा करें। बीआरएस पार्टी के साबिक वजीर टी श्रीनिवास यादव ने कहा कि सियासी इंतकामी कार्रवाई करना ठीक नहीं है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि केटीआर के ब्रदर निस्बती के घर की तकरीब के मौके पर हुकूमत साजिश कर रही है। हुकूमत को चाहिए कि अवाम मसाइल से परेशान हैं, उन पर तवज्जो दें। उन्होंने कहा कि हर घंटा एफआईआर तब्दील हो रही है, इसकी क्या वजह है। उन्होंने कहा कि सर्च वारंट के बिना गेटेड कम्युनिटी में किस तरह तलाशी ली गई। उन्होंने कहा कि हमको शक हो रहा है कि केटीआर को केस में फंसाने की साजिश की जा रही है। खानदानी तकरीब को रेव पार्टी बताने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत कितनी भी साजिश कर ले, अवाम के हक में जिद्दोजहद करने से हम पीछे नहीं हटेंगे। रायदुर्गम और एन विलास में राजपाकला के भाई राजेंद्र प्रसाद के विलास की तलाशी के मौके पर आबकारी पुलिस और बीआरएस लीडर्स के दरमियान नोक-झोंक और धक्कम-पील के मनाजिर देखे गए। बीआरएस पार्टी के लीडर्स जब आबकारी पुलिस की तलाशी लेने से रोक रहे थे, हालात खराब हो गए। बीआरएस पार्टी के कायदीन ने कहा कि सर्च वारंट के बगैर किस तरह तलाशी ली जा सकती है। इस दौरान पुलिस ने बीआरएस पार्टी के लीडर्स को गिरफ्तार कर लिया। मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने महाराष्ट्र असम्बली इंतखाबात में मुंबई के बायकला और मुंबरा से अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। मुंबई के मजलिसी इंचार्ज रुकन असम्बली तेलंगाना अहमद बलाला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इस बात का ऐलान किया। बायकला से फैयाज खान और मुंबरा से सैफ पठान को मजलिस ने उम्मीदवार बनाया है। उन्होंने मुंबई मजलिस के सदर रईस लश्करिया के साथ मीडिया से बात करते हुए कहा कि मजीद उम्मीदवारों का हाईकमान की मंजूरी मिलने के बाद ऐलान किया जाएगा। अहमद बलाला ने कहा कि मुल्क में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वो वाहिद सेकुलर जमात है जो इख्तिदार के लिए नहीं बल्कि अवाम के मसाइल हल करने के लिए इंतखाबात में हिस्सा लेती है। उन्होंने कहा कि कायद मजलिस अकबरुद्दीन अवैसी और सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी मजलिसी उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेंगे। जैसा जैसा वहाँ से हेड ऑफिस से या मरकज से इंस्ट्रक्शंस आएंगे, मैं यहाँ का भाई सेक्टर मजलिस के जिम्मेदार की यहाँ के सदर के साथ मिलकर यहाँ के ऐलान हम करेंगे। अभी फ़िलहाल बाइकल्ला से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सदर मजलिस की जानिब से जनाब फरियाद अहमद साहब का नाम तकरीर किया गया है, तो वो यहाँ से लड़ेंगे। और मुमरा से जनाब सैफ पठान को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मुमरा से ऐलान किया है अपने उम्मीदवार।
रुकन असम्बली मोहम्मद माजिद हुसैन ने सदर मजलिस रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के चेक्स तकसीम किए, जिसकी जुमला मालियत 23,75,000 रुपये बताई गई है, जिससे 50 दरख्वास्त गुजारों ने इस्तेफादा किया। चेक्स हासिल करने वालों ने मोहम्मद माजिद हुसैन से इज़हार तशक्कुर किया। इस मौके पर मल्लेपल्ली डिवीजन के नुमाइंदा रुकन बलदिया जफर खान के अलावा दीगर भी मौजूद थे। तेलंगाना बटालियन पुलिस मुलाजमीन और उनके अफराद खानदान का रियासत भर में इतवार के दिन भी एहतजाज जारी रहा। एक पुलिस एक रोल को लेकर यह एहतजाज किया जा रहा है। इतवार को नलगुंडा, सिरसिल्ला, आदिलाबाद और मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज किया गया। नलगुंडा में एहतजाजी पुलिस मुलाजमीन की तरफ से उनके साथ इंसाफ का मुतालबा करते हुए नारेबाजी की गई। आदिलाबाद में भी सड़कों पर बैठकर एहतजाज किया गया। पुलिस के आला हुक्काम की तरफ से एहतजाजियों को समझाने की कोशिश की गई, लेकिन वो अपने मुतालबात को लेकर अटल देखे गए। पुलिस हेडक्वार्टर्स और दफातर में जाकर एहतजाजी मुजाहरे किए गए। डायरेक्टर जनरल पुलिस डॉक्टर जितेंद्र ने एहतजाज करने वाले पुलिसमैन और उनके अरकान खानदान के नाम एक अपील जारी करते हुए इस एहतजाज को खत्म करने को कहा और उनके तमाम जायज़ मुतालबात पर संजीदगी से गौर का तयख्खुन दिया। उन्होंने वाज़ेह किया कि डिसिप्लिन के लिए मशहूर रियासती पुलिस की सफ़ों में अदम डिसिप्लिन पर कार्रवाई की जाएगी। सदर मजलिस और रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती और रुकन असम्बली अहमद बलाला की हिदायत पर चंचलगुड़ा कॉलेज ग्राउंड पर ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस तेलंगाना की जानिब से मजलिस के ताउन से मेगा मुफ्त यूनानी मेडिकल कैंप मुनक्किद हुआ, जिससे बेशुमार अफराद ने इस्तेफादा किया। मरीजों का हिजामा थेरेपी पर ज्यादा रुझान देखा गया। मजलिस के कॉरपोरेटर एम ए सलाम शाहिद, नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स मोहम्मद शफी, एस एम अबरार, कॉरपोरेटर सैयद मिनहाजुद्दीन, साबिक कॉरपोरेटर मुर्तज़ा अली के अलावा मजलिस के कई सीनियर मुकामी कायदीन, सुदर और मोतमदीन मजलिस इब्तदाई भी इस कैंप में मौजूद थे। यूनानी तिब्बी कांग्रेस के रियासती सदर डॉक्टर ए खान और मोतमद हकीम मोहम्मद हसानुद्दीन तलात की निगरानी में कैंप में 800 से ज़ायद मर्द हजरात के हिजामा कराए गए। तकरीबन 200 ख़वातीन ने भी इससे इस्तेफादा किया। इस कैंप में फालिज, लखवा, जोड़ों का दर्द, गुर्दा और मसाने की पथरी, अमराज जिक्र, जल्दी अमराज, फेफड़ों के अमराज, मैदा, कब्ज़, अमराज निस्वा, आसाबी कमज़ोरी समेत मुख्तलिफ अमराज के माहिर हुक्मा ने मरीजों की तशख़ीस की। मुफ्त दवाएँ, हलवे और दीगर अद्वियात फराहम की गईं। मुंतज़मीन ने इस मेडिकल कैंप के इनेकाद पर ताउन और सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और रुकन असम्बली जनाब अहमद बलाला का शुक्रिया अदा किया। इस कैंप के जरिए आम बीमारियों जैसे नज़ला, बुखार, खांसी वगैरह के अलावा शुगर और ब्लड प्रेशर के बारे में अवामी शऊर बेदार किया गया। डीजीपी तेलंगाना डॉक्टर जितेंद्र की हिदायत पर अपनी जान की कुर्बानी देने वाले पुलिस मुलाजिमीन की याद में मुनक्किद होने वाले फ्लैग डे की तकारीब को 21 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक मुनक्किद किया जा रहा है। इस ज़िमन में संगारेड्डी पुलिस परेड ग्राउंड पर खून के अतिये का कैंप और ओपन हाउस प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया। इसका इफ्तिताह एसपी संगारेड्डी और कस्बे के पुलिस अफसरान, पुलिस मुलाजिमीन और नौजवानों ने रज़ाकाराना तौर पर 61 यूनिट्स अपने खून का अतिया दिया। प्रोग्राम में करीब 350 तलबा ने हिस्सा लिया। उन्होंने इस मौके पर तलबा को पुलिस की कारकर्दगी और पॉलिसियों से वाकिफ करवाया। अलावाजी उन्होंने साइबर क्राइम से बचने और अच्छी तालीम हासिल करके अपने वालिदैन की इज्जत अफजाई करने का मशवरा दिया। साइबर क्राइम्स के जाल में अगर कोई फंसता है तो उन्हें 1930 नंबर पर कॉल करने के लिए कहा गया। ओपन हाउस प्रोग्राम में पुलिस की जानिब से इस्तेमाल होने वाले हथियार और दीगर चीज़ों से भी तलबा को वाकिफ करवाया गया। पुलिस कांस्टेबल के एहतजाज एक अनोखा अंदाज में देखा गया। नलगुंडा में 12वीं बटालियन के कांस्टेबल के साथ इंसाफ करने का मुतालबा करते हुए पुलिस कांस्टेबल के बच्चों ने एहतजाज करते हुए इंसाफ करने का मुतालबा किया और नारेबाजी की। पुलिस इन एहतजाज करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने से कासिर दिखाई दी। कामाटीपुरा पुलिस ने पुराना पुल की रहने वाली 11 साला लड़की के साथ छेड़छाड़ करने के इल्जाम में एक नौजवान के खिलाफ केस दर्ज किया है। रुकन असम्बली चार मीनार मीर जुल्फ़िकार अली ने मीडिया को बताया कि सदर मजलिस रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर उन्होंने कामाटीपुरा पुलिस स्टेशन पहुंचकर तफसीलात हासिल की। उन्होंने बताया कि हुसैन आलम पुलिस के डिटेक्टिव इंस्पेक्टर और इंचार्ज SHO कामाटीपुरा पुलिस इस सिलसिले में तहकीकात कर रहे हैं। लड़की के अफराद खाना ने क़ब्ल अज़ीम कामाटीपुरा पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। मुतासिदा लड़की को पकड़ने या उसका फोटो खींचने का इल्ज़ाम रियासत बिहार के नौजवान पर है। मजलिस की नुमाइंदगी पर कामाटीपुरा पुलिस नौजवान के खिलाफ केस दर्ज करके उसे हिरासत में लेकर तहकीकात कर रही है। और नाज़रीन, आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर एक और नजर। अगर आप कारोबार करना चाहते हैं तो क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स से राब्ता करें।
क्यूमैक्स दे रहा है रेडी बैंकेट हॉल 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल 5th, 6th, 7th फ्लोर पर 6,000 का 18,000 स्क्वायर फीट का रेडीमेड बैंकेट हॉल। आज ही रजिस्ट्री कराएं और आज से ही फंक्शंस की बुकिंग करें, वो भी बेहतरीन प्राइम लोकेशन टोली चौकी पर। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसी दीगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन क्यूमैक्स कोहिनूर बैंकेट हॉल टोली चौकी हैदराबाद। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल डॉलर हिल्स अलकापुर रोड मूसा एनक्लेव एसए कॉलोनी टोली चौकी एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी टोली चौकी एजल रेजिडेंसी एसए कॉलोनी टोली चौकी सरीन हाइट्स गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी दारुल अमान हैप्पी होम्स कॉलोनी अलकापुर दारुल खैर सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव टोली चौकी अकबर एनक्लेव गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट बकाया 12 महीने के आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स टोली चौकी हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। इस महंगाई के दौर में सोना खरीदना हुआ आसान। जौहरी गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम टोली चौकी लाया है गोल्ड बचत स्कीम। शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए अब सोना खरीदें 11 महीने की आसान अक़सात पर और 12वें महीने में अपना सोना घर ले जाएं एवरेज गोल्ड रेट पर बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज और 0% इंटरेस्ट के साथ 916 हॉलमार्क की ज्वेलरी, नो वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस के साथ। अब होगी बचत पैसों की और घर आएगा सोना, वो भी आसान अक़सात पर। आपका भरोसा हमारी पहचान। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम टोली चौकी हैदराबाद। सेल्फ हेल्प ग्रुप की ख़वातीन आरटीसी बस की मालिक बिलासूदी कर्ज की रकम को 25,000 करोड़ रुपए करने का भट्टे विक्रमार्का का ऐलान। सरकारी मुलाजिमीन को 1 DA मंजूर। रियासती काबीना के इजलास में दीगर अहम फैसले। ट्यूटर टिल्लू को फरार होने में मदद की गई, बी संजय का इल्जाम। KTR को फंसाने की साजिश, BRS का इल्जाम। और KTR के ब्रदर निस्बती के मकान की रेफ पार्टी पर धावा। राज पाकला फरार, 35 अफराद के ड्रग्स के मुआयने, तहकीकात जारी। और नाज़रीन के साथ 4TV खबरनामे का यहीं पर अख्तिताम होना चाहता है। मुझे मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।